Hello students, the topic of our today's class would be the void agreements which are there in the Indian Contract Act. Uh, we have already studied certain cases or certain scenarios wherein the agreements become void, and apart from that there are certain agreements which have been declared, expressly declared to be void by the Indian Contract Act, by the law itself in the specific sections. So our major focus will be on those. So if you see all the initial points that have been written in the black color, which are visible on your slide, these are the points which are void agreements, which we have already discussed in the earlier classes. For example, agreements entered by minor or a person of unsound mind, that is the person who is incapable of entering into the contract, they are void agreements. Any agreement which has been made because of a bilateral mistake, which means both parties were under the mistake of fact, that becomes a void agreement. If there is any agreement without consideration, it is void. Any agreement where the object for which the contract is being entered into or the consideration is unlawful, then it becomes a void agreement. The agreement where the object or consideration is unlawful partially. It's partially unlawful, partially comes under the legal parameter, but they cannot be separated. That means unlawful and lawful part are together mixed up in such a manner that you cannot separate them. Then it will also become a void agreement. All these points we have already discussed in the earlier chapters, chapter 3, 4, 5, 6 of your book. Now, today, what we are going to discuss are the agreements that have been expressly declared to be void under the Indian Contract Act, and it includes all these pointers ranging from section 26 to section 30, then section 36, as well as there is one more section, section 56. All these are the events, all these are the scenarios wherein the agreement is expressly declared to be void. The first one that we are going to discuss today is when it is in restraint of marriage, which is covered under section 26. सेक्शन 26 क्या कहता है कि कोई भी इस तरह का आप अग्रीमेंट कर रहे हो wherein you are restraining someone to marry, wherein you are stopping someone to marry other than a minor, it is void, because minor is not allowed to marry. So if you are stopping a minor to marry, that is a valid thing. But if you are stopping any other person to marry, you are putting any kind of restraint on the marriage of any other person, that is expressly declared void under the section 26 of Indian Contract Act. अब रिस्ट्रेंट किस तरह का हो सकता है? रिस्ट्रेंट जनरल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है. जनरल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि आप किसी के साथ अग्रीमेंट एंटर करो कि तुम कभी शादी ही नहीं करोगे. दिस इज अ जनरल रिस्ट्रेंट. पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या हो सकता है कि आप किसी के साथ अग्रीमेंट एंटर करो कि तुम इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ या इस स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन के साथ मैरिज नहीं करोगे, तो वो एक पार्शियल रिस्ट्रेंट है. बोथ द काइंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स आर void. Up, there are certain judicial interpretations under this which we need to understand. कुछ केसेस इस तरह के आए जहां पर रीमैरिज करने पर कोई पेनल्टी लगाई गई या अग्रीमेंट इस तरह का एंटर किया गया कि रीमैरिज अगर किसी विडो की हो जाती है तो उसे जो मेंटेनेंस मिल रही थी अपनी पुरानी फैमिली से, हस्बैंड की फैमिली से, वो नहीं मिलेगी. तो केस ने क्या, कोर्ट ने क्या होल्ड किया, दैट सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स विल नॉट बी वॉइड. कि अगर आप किसी से ये कह रहे हो, इस तरह का अग्रीमेंट एंटर कर रहे हो कि एक बार शादी हो चुकी है, अगर उसने रीमैरिज करी तो उस पर कोई पेनल्टी लगेगी. ठीक है, इस तरह का कुछ एग्रीमेंट आपस में दोनों पार्टीज ने एंटर किया है. या कोई एग्रीमेंट एंटर किया है कि अगर कोई विडो है या अगर कोई डाइवोर्सी है, अगर वो रीमैरिज करते हैं, अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो जो उनको फर्स्ट मैरिज से मेंटेनेंस का अमाउंट मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा. तो इस तरह के एग्रीमेंट्स वॉइड नहीं है, दे आर वैलिड एग्रीमेंट्स. सिमिलरली, इफ समबडी प्रोमिसेस टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन, कोई ये कहता है कि मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं ये एग्रीमेंट में एंटर कर रही हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, इसे हम रिस्ट्रेंट नहीं मानते हैं. दिस इज नॉट वॉइड. यू आर प्रॉमिसिंग समवन in a positive sense, that is a valid thing, that will be agreeable, that will not be a void agreement. लेकिन अगर आप किसी एक पार्टी के साथ अग्रीमेंट एंटर करते हो, ठीक है, देयर इज एन एग्जांपल इन योर बुक wherein it says if X agrees with Y taking some consideration in return that
शी विल नॉट मैरी जेड। ठीक है, तो दो पार्टीज आपस में अग्री कर रही हैं कि मैं थर्ड पार्टी से शादी नहीं करूंगी और उसके अगेंस्ट कुछ पैसा ले रहे हैं, कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो वो एक वॉइड अग्रीमेंट है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते किसी से शादी करने से। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हो, वो रिस्ट्रेंट नहीं है। Next kind of agreements that have been declared to be void are agreements in restraint of trade, which is covered under section 27. Simply section 27 क्या कह सकता है कि कहीं पर भी आप किसी को कोई एक lawful profession, trade या business करने से मना कर रहे हो, तो वो void माना जाएगा। आप किसी को कुछ काम करने से, जो कि legal काम है, वो करने से रोक नहीं सकते। But there are certain exceptions to this section 27. तो exceptions का क्या मतलब हुआ कि कुछ cases, कुछ scenarios इस तरह के हैं जहां पर आप restraint लगा सकते हो, लेकिन वो क्या restraint है, कितना restraint लग सकता है, that needs to be understood. तो on the face of it section 27 पहले ये कहता है कि आप किसी को भी कोई काम करने से, कोई प्रोफेशन ज्वाइन करने से, कोई किसी तरह का बिजनेस करने से जो लॉफुल है, रोक नहीं सकते हो। इट विल बी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां आप रोक सकते हो। सो इफ यू सी द टेबल दैट इज देयर ऑन योर स्क्रीन, exceptions to section 27, it has been divided into two parts. There are certain statutory provisions, यानी कि law में defined हैं, कुछ certain acts हैं अलग अलग, कुछ certain sections हैं अलग अलग acts के, which give you a right to put a restraint. And then through judicial interpretations certain things have been allowed. तो हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, सेल ऑफ गुडविल। ये एक्सेप्शन क्या कहता है, गुडविल आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि हर बिजनेस की एक गुडविल होती है और उस कंपनी की जो गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन होती है, इट हैज सम मॉनेटरी वैल्यू। तो अगर आप अपनी कंपनी को सेल आउट कर रहे हो एंड अलोंग विद दैट आप कंपनी की गुडविल बेच रहे हो, गुडविल कैसे क्रिएट होती है, थ्रू योर कंज्यूमर्स। what kind of status or what kind of the consumer value your company is enjoying in the market, that gives you the goodwill. जितना अच्छा आपका consumer base है, जितने ज़्यादा loyal आपके consumers हैं, जितना अच्छा reputation आपका company का है market में, उतनी आपकी goodwill की value higher होती है। तो आज अगर मैं अपनी कंपनी किसी को सेल आउट कर रही हूँ और मैं गुडविल भी बेच रही हूँ साथ में, तो फिर मुझ पर ये रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है दैट आई विल नॉट कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस। एंड फर्दर द सेक्शन सेज प्रोवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, provided that the restraint is reasonable in point of time and space. जहां पर भी ये एक्सेप्शंस हैं, हर केस में ये बोला गया है कि यहाँ आप रिस्ट्रेंट तो लगा सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब समझेंगे हम। मैंने किसी को अपनी कंपनी सेल ऑफ करी, ठीक है, मैं से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पार्ट्स में डील करती हूँ, मैंने उनको कंपनी सेल करी और साथ में मैंने कंपनी की गुडविल भी सेल करी। इसका क्या मतलब है, आई एम सेलिंग द एंटायर कंपनी टू द अदर पर्सन सो दैट ही और शी कैन रन दैट बिजनेस। अब अगर साइमल्टेनियसली मैं एक और अपनी नई कंपनी खोल लूं, ये पुरानी कंपनी मैंने सेल ऑफ कर ली, एक नई कंपनी और खोल लूं जो सेम कंप्यूटर पार्ट्स में ही डील कर रही है, तो जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, जो आपके सप्लायर्स होते हैं, जो आपकी मार्केट वैल्यू बनी होती है, वो इसलिए बनी है क्योंकि आप ओनर थे, आप वो कंपनी चला रहे थे। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपने नई कंपनी खोली, सिमिलर प्रोडक्ट्स में आप अभी भी डील कर रहे हो, लेकिन कंपनी का नाम चेंज हो गया, तो वो सारे जो आपके कस्टमर्स थे पुरानी कंपनी के, वो आपकी नई कंपनी की तरफ आ जाएं। इसलिए रिस्ट्रेंट लगाना अलाउ किया जाता है, सो दैट जिसने नई कंपनी खरीदी, जिसने आपकी पुरानी कंपनी खरीदी है, वो जब गुडविल के भी आपको पेमेंट कर रहा है, आपको कंपनी के लिए भी पेमेंट कर रहा है, तो व्हाई ही और शी इज मेकिंग दैट पेमेंट, सो दैट दे कैन फ्लरिश देयर बिजनेस, सो दैट दे कैन टेक दैट बिजनेस अहेड। अगर वो सारे कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे क्योंकि आपने तो सिमिलर एक नई कंपनी खोल ली, तो फिर उसका बहुत नुकसान हो जाएगा जिसने आपसे बिजनेस खरीदा था। इसलिए रिस्ट्रेंट लगाना अलाउड है। What do we mean by reasonability of time and space? There is a case law, Goldsol versus Goldman. अब इसमें जो गोल्डमैन है वो अपने जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं कि आपने
डिजाइन्स कॉपी करके उस तरह की ज्वेलरी बनाई, एंड इट इज नॉट इन रियल गोल्ड और रियल डायमंड बट इमिटेशन ज्वेलरी है, उसमें डील करते हैं गोल्डमैन। लंदन में उनका बिजनेस था। उन्होंने अपना ये जो बिजनेस है ये गोल्ड सोल को बेच दिया, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस। और साथ में एक प्रॉमिस जो उन्होंने साइन किया, जो अग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें ये लिखा कि फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years मैं ना तो इमिटेशन ज्वेलरी में डील करूंगा इंग्लैंड में, लंदन में उनकी ऑलरेडी शॉप थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अगले 2 साल तक इस इमिटेशन ज्वेलरी में इंग्लैंड में डील नहीं करूंगा, मैं रियल ज्वेलरी में भी इंग्लैंड में डील नहीं करूंगा, और मैं रियल और इमिटेशन ज्वेलरी दोनों में ही डील नहीं करूंगा, कुछ और कंट्रीज में भी। तो एक तो उन्होंने इंग्लैंड में कह दिया कि इंग्लैंड में मैं ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम नहीं करूंगा, ना इमिटेशन ज्वेलरी ना रियल ज्वेलरी, और इंग्लैंड के अलावा भी कुछ और उन्होंने फॉरेन कंट्रीज की लिस्ट बना दी कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज में भी मैं इमिटेशन या रियल ज्वेलरी में काम नहीं करूंगा। लेकिन बाद में उन्होंने इनमें से कोई एक बिजनेस खोल लिया, और जो गोल्ड सोल हैं जिन्होंने पुराना बिजनेस उनका बाय किया था, उन्होंने गोल्डमैन पे केस कर दिया। अब जब ये कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने ये कहा कि जो पहला प्रॉमिस है वो तो लॉफुल है, वो तो वैलिड है, कि आप ये कह रहे हो आपने इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस किसी को अपना सेल ऑफ किया है, आपने साथ में गुडविल सेल ऑफ करी है, और आप ये कह रहे हो लंदन में आपका सिचुएटेड था, और आप ये कह रहे हो अगले 2 साल तक आप इमिटेशन ज्वेलरी में विद इन इंग्लैंड डील नहीं करोगे। यहाँ तक तो फेयर है, दिस इज रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्योंकि सिर्फ 2 साल का ही बैन लगाया जा रहा है आप पे, 2 साल के लिए ही आपको कहा जा रहा है आप नहीं करोगे। प्लस उसी एरिया में, लंदन में था तो आपने इंग्लैंड विद इन दैट सेम कंट्री आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। लेकिन जो बाकी दोनों प्रोमिसेस हैं वो वैलिड नहीं है, कि आप रियल ज्वेलरी में भी डील नहीं करोगे, रियल ज्वेलरी के कस्टमर्स बिल्कुल अलग है, इमिटेशन ज्वेलरी का कंज्यूमर लाइन बिल्कुल अलग है, और आप रियल और इमिटेशन ज्वेलरी में बाहर की कंट्रीज में भी डील नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका यहाँ लंदन का बिजनेस तो इम्पैक्ट होता ही नहीं है। तो कोर्ट ने कहा सिर्फ जो पहला प्रॉमिस था वो वैलिड रहेगा, बाकी दोनों प्रोमिसेस जो हैं वो आप रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हो, बिकॉज दे आर अनरीजनेबल इन पॉइंट ऑफ स्पेस। टाइम तो 2 साल का उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो आप स्पेस की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो दैट इज अनरीजनेबल इन टाइम ऑफ स्पेस, इन पॉइंट ऑफ स्पेस, इसलिए उन दो प्रोमिसेस को हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो एक्सेप्शन है वो है पार्टनरशिप एक्ट का, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ये कहता है कि आप क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। पहली रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे, यानी कि पार्टनरशिप एक चल रही है, पार्टनरशिप फर्म, उसमें जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, आप ये अग्रीमेंट कर सकते हो अमंग्स दी पार्टनर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो कि हम में से कोई भी कोई और बिजनेस नहीं करेगा other than this particular business that we are running together, तो this will be held to be valid। ये पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है कि आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ एक डील साइन कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि हम सब पार्टनर्स जो हैं वो इस एक बिजनेस के अलावा कोई और अपना अलग से बिजनेस नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ पार्टनर्स हैं। Then you can put some restriction on the outgoing partner। आउटगोइंग पार्टनर पे आप क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप रिटायर हो रहे हो या आप छोड़ के जा रहे हो, राइट? तो आप कोई और बिजनेस ऐसा कैरी ऑन नहीं करोगे जो हमारी फर्म से सिमिलर बिजनेस हो, क्योंकि आप भी हमारी फर्म का पार्ट रहे हो। तो कुछ टाइम तक इस पर्टिकुलर एरिया में आप सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपके कंज्यूमर्स शिफ्ट हो सकते हैं, आपकी गुडविल शिफ्ट हो सकती है। अगेन द पॉइंट इज दैट इट हैज टू बी रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ऐसा नहीं है कि आप आउटगोइंग पार्टनर को ये कह दो कि लाइफ लॉन्ग आप कभी भी ऐसा सिमिलर बिजनेस करोगे ही नहीं। नहीं, यू हैव टू फिक्स अप अ टाइम एंड दैट हैज टू बी अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है, दैट कैन डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। ऐसे ही इट हैज टू बी रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ स्पेस, कि कहां पर बिजनेस नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड ओवर आप कहीं पर भी ऐसा सिमिलर बिजनेस करोगे ही नहीं। If he or she has been a partner and is retiring from that partnership firm or leaving your partnership firm, तो उनको भी तो वही काम करना आता है, उनको भी तो उसी एरिया की नॉलेज है, तो आप उन्हें रोक नहीं सकते कि आप वैसा काम ही नहीं करोगे। हाँ, कितने टाइम तक नहीं करोगे या किस पर्टिकुलर एरिया में नहीं करोगे, दैट कैन बी डिफाइंड, दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट अप। Then there is a restriction within this on partners if you are anticipating dissolution of the firm or if the dissolution is already going on।
ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है कि आप फर्म को खत्म कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो या तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि डिसोल्यूशन होने वाला है, या ऑलरेडी डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो उस समय पर पार्टनर्स आपस में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अग्रीमेंट दे कैन एंटर इनटू? दे कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट दैट सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, व्हाटएवर इज देयर अंडरस्टैंडिंग, जिस भी तरह का वो अग्रीमेंट एंटर करना चाहते हैं, that they will not carry on a business which is similar of this dissolving firm. क्योंकि डिसॉल्व हो रही है, सारे पार्टनर्स अलग अलग हो जाएंगे, तो आप सारे पार्टनर्स पे भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो. अगर सबको मिलके लगता है नहीं, हम 4 पार्टनर्स थे, उनमें से 3 पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है या 2 पे लगानी है या 1 पे लगानी है, तो म्यूचुअली आपस में डिसाइड करके एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट कैन बी एंटर्ड इनटू कि हम में से कोई भी या हम में से कुछ लोग सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, अगेन with the reasonability or in point of time and space. ठीक है, और इसमें लास्ट अगेन कम्स रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. तो जहां पर भी आपका आप पार्टनरशिप फर्म की गुडविल सेल आउट कर रहे हो, तो जो बायर है they can enter into agreement with one of the partners or with all the partners that they will not carry on any such similar business to the firm. ठीक है. Then the third statutory provision is under the LLP Act of 2008. जो आपका LLP Act है 2008 का, वो एक प्रोविजन देता है जो सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर, जो LLP का पार्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो बनी है फर्म, उसका कोई पार्टनर है, वो LLP की परमिशन के बिना कोई भी और बिजनेस कर रहा है, while he or she is a partner of LLP, during that time simultaneously without taking permission of LLP, वो कोई भी और बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, तो उसे उस बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स LLP में ही क्लब करने पड़ेंगे, यहीं पर लेकर आने पड़ेंगे, और वो फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अमंग्स द पार्टनर्स हैं वैसे डिवाइड होंगे. So basically it restricts the partners of LLP to carry out any other business outside LLP without due permission of LLP. अगर आपने ड्यू परमिशन ले ली है बाकी पार्टनर्स से और फिर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो, साइमल्टेनियस कोई बिजनेस कर रहे हो, दैट इज अलाउड. बट इफ इट हैज नॉट बीन डन विद द परमिशन ऑफ LLP, तो लॉ ये कहता है कि उस अलग बिजनेस का जो इतना भी प्रॉफिट है, दैट यू विल हैव टू अकाउंट फॉर and you will have to bring it back to the LLP only. Fine. So these are the statutory provisions under which the exceptions have been given in the agreements in restraint of trade. Now there are certain judicial interpretations कि इनका कोई specific section नहीं है, लेकिन over a period of time through the case laws, through the judicial interpretations, it has been found कि ये भी आपके exceptions में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहला है आपका ट्रेड कॉम्बिनेशंस. तो किसी भी तरह का आप ट्रेड एसोसिएशन बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके अगर हम विद इन इंडिया बात करें, आपका फिक्की ऑडिटोरियम है, you have CII, which is Confederation of Indian Industries, then you have ASSOCHAM, which have, you know, a lot of people, the business people who are a part of that group, who are a part of these organizations, of these associations. लेकिन लॉ क्या कहता है कि इस ट्रेड एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें देखना पड़ेगा. अगर इन एसोसिएशंस का ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द बिजनेस, तो ठीक है, फिर तो वो वैलिड है. बट इफ देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रिस्ट्रेन द कंपटीशन, if their objective is to stop the competition, if it has any kind of adverse effect on the competition, फिर वो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर आ जाएगा एंड देन इट इज वॉइड. तो आप जो ट्रेड एसोसिएशन अपनी बना रहे हो, वो किस पर्पस के लिए बना रहे हो और वो किस तरह का काम कर रही है. अगर तो वो रेगुलेट कर रही है बिजनेस को, इट इज वर्किंग लाइक यू नो अ बॉडी वेयर इन एवरीबडी who is a part of it is being regulated, their actions are being taken care of, तब तो वो valid है. But if this trade body or this trade association is acting in any manner जहाँ पे competition restrict हो जाता है, तो फिर वो void हो जाएगा, because वो competition act 2002 के अंडर allowed नहीं है. If you remember, हमने bid rigging discuss किया था, right? Anti competitive agreements हैं कोई, ये ऑलरेडी हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी. अगर इस तरह का कोई भी इंपैक्ट आ रहा है, देन इट विल बी वॉइड.
Then, and the second judicial interpretation which is there is exclusive dealing agreements and franchise. एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि आप किसी जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, वो किसी एक सेलिंग एजेंट के साथ अग्रीमेंट में एंटर करे या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अग्रीमेंट में एंटर करे कि मैं अपना जितने भी आउटपुट है मेरी फैक्ट्री से, जितना भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है मेरी फैक्ट्री से, वो सारा मैं आप ही को दूंगा। और साथ में इन रिटर्न जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या कहे कि ठीक है, मैं सिर्फ तुम ही से खरीदूंगा, मैं और किसी का सामान नहीं खरीदूंगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसे लॉ कहता है ये वैलिड है। यहाँ पे आप रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं कर रहे हो, दिस इज एन अग्रीमेंट वेयर इन बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि मैं अपना सारा प्रोड्यूस अपनी फैक्ट्री से तुम्हें बेचूंगा, सो दैट यू आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माय पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, वो तुम्हारे ही पास मिलेंगे, तुम आगे उन्हें रिटेलर्स को दे दो। और तुम भी रिटर्न में मुझसे कह रहे हो कि मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ आप ही के सामान को आगे प्रमोट करूंगा, किसी और के सामान को प्रमोट नहीं करूंगा, आप ही का सिर्फ सामान लूंगा। तो इसे हम एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं मानते हैं। दिस कम्स अंडर द एक्सेप्शन एंड दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट टेकन एज अ रिस्ट्रेंट। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आई एम मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्मेटिक्स। अब एज अ मैन्युफैक्चरर मैं एक अग्रीमेंट साइन करती हूँ एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि मैं आपको सारा सामान, अपना मेरा सारा सामान तुम्हारे पास जाएगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड यू देन डिस्ट्रीब्यूट इट फर्दर, यू विल बी माय सोल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मैं जितना सामान प्रोड्यूस कर पा रही हूँ अपनी फैक्ट्री में, उतना सामान सामने वाला ना खरीद पाए, तब क्या होगा? सो इट मीन्स दैट से आई एम प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स पर मंथ इन माई फैक्ट्री, ठीक है, और मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर किसी एक को बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर सामने से कहता है कि मैं 700 यूनिट से ज्यादा नहीं खरीद सकता। तो फिर अग्रीमेंट क्या होगा? फिर अग्रीमेंट ये हो सकता है कि पहले 700 यूनिट्स तो मैं तुम्हें ही दूंगी, यू विल बी दी फर्स्ट ऑन दी प्रायोरिटी लिस्ट, तो पहले 700 यूनिट्स तो तुम्हारे पास ही जाएंगे। अगर तुम 1000 खरीद सकते हो तो 1000 के 1000 तुम ले लो, बट अगर तुम वो 1000 यूनिट्स नहीं ले सकते हो, अगर तुम कह रहे हो मैं आपके सिर्फ 700 यूनिट्स ही खरीद सकता हूं, तो बाकी 300 यूनिट्स का मैं नुकसान तो नहीं करूंगी। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम प्रोड्यूस ही 700 करो। I will produce 1000 units in my factory. If you can take 700 units, you take that. Rest 300 I'll give to somebody else. If you can take all the 1000, you take that. इस तरह के जो अग्रीमेंट्स हैं उन्हें वैलिड माना जाता है, लेकिन सोल सेलिंग एजेंट मुझे मेरे सरप्लस को बेचने से रोक नहीं सकता। If they can buy all the products, it is fine. If they cannot, then they cannot tell me कि जो आपका सरप्लस है वो भी आप किसी और को नहीं बेच सकते, वो मैं किसी को भी सेल आउट कर सकती हूँ। Then let's talk about the franchise agreements कि franchise को क्यों अलग से डील किया गया और क्यों कहा गया है कि वो एक्सेप्शन में आएगा। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? इफ से आई टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, क्योंकि आप सब मैकडॉनल्ड्स को जानते हैं, मैकडॉनल्ड्स कैसे ऑपरेट करता है। यू सी अ लॉट ऑफ स्टोर्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स, द टेक अवे स्टोर्स और द रेस्टोरेंट्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स, वो क्या है? वो फ्रेंचाइज पे चल रहे हैं। Anybody can buy the franchise of McDonald's. They have to follow a process and the McDonald's gives its franchise. इसका क्या मतलब है कि McDonald's के products जो McDonald's का फूड इंडस्ट्री में जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं, वो आप अपनी चेन के थ्रू सेल आउट करोगे। अब McDonald's का एक सेट प्रोसेस है कि बर्गर कैसे बनना है, कहाँ से बन आना है, कहाँ से उसकी टिक्की आनी है, कहाँ से उसके इंग्रेडिएंट्स आने हैं, क्या प्रोसेस फॉलो होना है। सिमिलरली फॉर देयर फ्राइज, सिमिलरली फॉर देयर अदर प्रोडक्ट्स। तो जो भी फ्रेंचाइज बाय करता है उसे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, बट देन दे कैन रन देयर ओन बिजनेस, वहां के प्रॉफिट्स जो हैं वो उनके पास जाते हैं। नाउ व्हेन somebody enters into a franchisee agreement, तो if you will see, if somebody has taken a McDonald's का फ्रेंचाइज, वो मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज स्टोर में कोई और प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ये फ्रेंचाइज में अग्रीमेंट एंटर किया जाता है। सो से इफ आई एम बाइंग मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज स्टोर, मुझे ये कहा जाएगा कि आप, ऐसा नहीं है कि मैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज तो ले लूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास शॉप बहुत बड़ी है, मेरे पास रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, और मुझे लग रहा है कि यार ऐसा करते हैं मैकडॉनल्ड्स के साथ साथ मैं यहाँ पिज़्ज़ा हट का सामान भी बेच देती हूँ, या यहाँ मैं डोमिनोज का सामान भी बेच देती हूँ, या मैं लोकल किसी वेंडर का सामान भी सेल आउट करना शुरू कर देती हूँ, वो आप फ्रेंचाइज में नहीं कर सकते हो। लेकिन कोर्ट और लॉ ये कहता है कि ये आपके रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आते।
If somebody is giving you their franchisee, so obviously they would want कि आप वहां पे उनके competitive goods ना sell out करो, आप वहां पर किसी और के product sell out मत करो, क्योंकि they are basically giving their name to you, they are lending their name to you. कोई भी जाकर मैकडॉनल्ड्स में कभी ये नहीं पूछता कि इसका ओनर कौन है, इस पर्टिकुलर मैकडॉनल्ड्स का ओनर कौन है. मैकडॉनल्ड्स इज मैकडॉनल्ड्स. I know when I'm going to that place, I'll get the same quality product throughout. So वहां पर इसलिए वो एक restraint लगाया जाता है that if you are running a franchisee, you will not sell any other product over there or any other competitive goods over there. This is not taken as a restraint of trade. That is why it comes under exception. Last इसमें जो है हमारा वो है stipulation in service agreements. Generally जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते हो तब भी आपके एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में आपके साथ जब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है तब कुछ रेगुलेशंस लगाई जाती हैं. उन रेगुलेशंस के बारे में हम दो रेगुलेशंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे विच कम्स अंडर दिस थर्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. पहला, देयर कैन बी अ रिस्ट्रिक्शन व्हेन यू आर ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट दैट यू विल नॉट टेक सर्विस विद एनीबडी एल्स. क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब में हो तो वहां पर एम्प्लॉयर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है दैट व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट, जब आप ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हो तो कोई दूसरी जॉब आप साथ में नहीं कर सकते. इट इज टेकन टू बी परफेक्टली वैलिड. सिमिलरली सम रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट आउट दैट वंस यू लीव द जॉब, ठीक है, उसके बाद आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस आप कुछ टाइम पीरियड के लिए जब किसी और सर्विस में जा रहे हो तो सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है एग्जिस्टिंग कंपनी को. आप यहां से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉब में जा रहे हो, राइट. आपने जॉब छोड़ के कोई और जॉब ली, वहां पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता. वंस योर सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपको कहीं और जाने से कोई रोक नहीं सकता, आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो. बट The old company will have the fear कि अगर आपके पास कोई ट्रेड सीक्रेट्स थे उनकी कंपनी के या कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी उस कंपनी की, वो कहीं आप दूसरी कंपिटिटिव कंपनीज के साथ शेयर ना कर दो. तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन वैलिड माना जाता है जहां पर जो एम्प्लॉय है जो छोड़ के जा रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रेन लगाया जाए दैट यू विल नॉट डिस्क्लोज any trade secrets or you will not disclose the highly confidential information to anybody else outside this company. This kind of restriction can be put. और अगर बाद में पता लगता है कि एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ के गया था, उसने कोई ट्रेड सीक्रेट रिवील कर दिया है या उसने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर शेयर की है तो उस पर केस फाइल हो सकता है. इसे वैलिड माना गया है. So these are the exceptions to this section 27. The next topic we will take up in the next video. Thank you.